बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum, my dear student of BCS school. Today I want to give you the revision of mid term. आज हम लोग mid term का revision करेंगे 190. What we will do in it, we will take out coordinating conjunctions and subordinating conjunction. How we will recognize the coordinating conjunction? By the fanboys. Fanboys, F for okay class, look at over here carefully. Fanboys, these are the coordinating conjunctions. Except these, whatever conjunctions comes to you, these are the subordinating, such as if she calls me, I will go, or I did not come because you did not invite me, because it does not belong to the fanboys family, so it means that it is the conjunction of subordinating. जो कंजंक्शन फैन बॉयज से बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब है कि ये फिर हमारा सबऑर्डिनेटिंग है। आप लोग पेज नंबर 190 पर देखिएगा, इसमें आपको एक्सरसाइज में क्या करना है, जो भी कंजंक्शंस आपको फैन बॉयज से रिलेटेड मिलें वो हमारे होंगे कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग, और जो फैन बॉयज से बिलोंग नहीं करते वो होंगे हमारे सबऑर्डिनेटिंग। Correct. Now look at the exercise number 2, page number 190. What we will do in it, you will make some sentences. Then, what is the meaning of then? Then meaning is comparative. Comparative means मुकाबला करना, such as they are more rich than us, वो हमसे ज़्यादा अमीर हैं। They are more rich than us. So then के meanings क्या होते हैं? Comparative. This is called the comparative degree. Okay, now another sentence, if. If means condition. Condition को हम उर्दू में कहते हैं शर्त. She will weep if you will beat her. She weeps. She weeps if you will beat her. वो रोती है अगर तुम उसे मारते हो. Correct. Now open the page number 196. Number 196. Okay, what you will do in it, these are the interjections. Correct. Bravo. Bravo means to admire someone. Bravo, you performed well. Bravo, she did dance well. Okay, another interjection, look at over there. Shh. It means to make them keep quiet. Shh, my father is sleeping. Shh, she is watching TV. Shh, she is studying. Correct. Now another, hooray. Hooray means to pleasure. Hooray, what is the meaning of hooray? Pleasure. Pleasure means खुशी.
Hooray! India has won the match. Hooray! Pakistan has won the match. Hooray! I got first position in my exam. Hooray! School has been opened. Correct. Hey. Hey means to call someone. Hey, what are you doing in my room? Hey, what are you studying? Hey, why are you laughing? Hey, why are you weeping? Okay. Another is ouch. Ouch means if you hurt somewhere, if somebody hurt you. An example that you have stepped on my foot. Ouch, she has fell down from the bike. Ouch, she has fallen down from the stairs. Wow. Wow means to if you like something, if you like something or someone, so suddenly you say, wow, what a beautiful girl. Wow, what a strong man. Wow, what a beautiful room. Wow, what a beautiful painting. Wow, what a nice baby. Correct. Same thing. Okay, now page number 197. Do in it you will recognize that it is sentence or it is not sentence. आपको क्या करना है, आपको इसमें पहचानना है कि ये सेंटेंस है या नहीं. जो भी बात आपको कंप्लीट सेंस मिले तो आप समझ जाइएगा कि ये सेंटेंस है. जस्ट सपोज आई शी गिव्स, वो देती है. अब इसको गौर से देखिए कि यहाँ तक बात है, इसके अंदर सब्जेक्ट है, वर्ब है, वो देती है. लेकिन क्या हमें ये सोचने की नीड नहीं होगी कि वो क्या देती है. तो यहाँ पे किसी और चीज़ की नीड है, तो इट मीन्स ये सेंटेंस नहीं है. तो हम क्या करेंगे, नॉट अ सेंटेंस. नॉट अ सेंटेंस. करेक्ट. ही स्लिप्स, वो सोता है. सब्जेक्ट वर्ब. अब यहाँ देखिए ये बात पूरी तरीके से अंडरस्टूड है दैट ही स्लिप्स. तो फिर ये इसको हम क्या कहेंगे, आ सेंटेंस. बच्चों जिस किसी में भी हमें कंप्लीट बात मिले तो आप समझ जाइएगा कि वो हमारा सेंटेंस है. यानी कि अब इसमें देखिए ही स्लिप्स, वो सोता है, ये बात अंडरस्टूड है. ये देखिए स्माइल्ड, द गर्ल स्माइल. अब इसमें भी यहाँ देखिएगा एक हमें सब्जेक्ट मिला, एक हमें वर्ब मिला, लेकिन यहाँ बात भी अंडरस्टूड है. द गर्ल स्माइल, लड़की मुस्कुराई. तो इसका मतलब है कि ये बात अंडरस्टूड है, ये हमारा सेंटेंस. इसको हम कहेंगे आ सेंटेंस. वो खाता है. देयर आर मेनी थिंग्स for eating. What does he eat? Definitely the question comes in my mind and in your mind as well that he eats. What does he eat? वो खाता है, वो क्या खाता है. It means that it is not complete sentence. So we can recognize that not a sentence. Not a sentence. Caution. If you understand subject and predicate exercise, what you will do, you will analyze what is subject and what is predicate. I teach English. Will do in this exercise, I will analyze that what is subject and what is predicate. At first I will write subject, then predicate. What is subject? I teach English. Predicate, teach English. Correct. He goes to school. He subject, goes to school, predicate. Gotten? That what we will do in this exercise, we will recognize, we will analyze that what is subject and what is predicate. I teach English. I is subject, teach English, predicate. He subject, goes to school, predicate. So same thing what we will do, at first we will write subject. पहले हम subject लिखेंगे, फिर हम predicate लिखेंगे. तो जो लगेगा हमें subject है, हम पहले उसमें subject लिख देंगे, फिर उसके बाद हम इसमें predicate कर देंगे. ठीक है. अब बेटा हमें क्या करना है, अब हमें एक एक्सरसाइज करनी है जिसके अंदर हमें सब्जेक्ट, वर्ब और कॉम्प्लीमेंट को
सेपरेट करना होगा। Many times I made you understand that how we will take out the object from the sentence by what and whom questions. Correct? हम what and whom questions की हेल्प से कंफर्म कर सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है या नहीं। The two sentences over here. First one is that I eat food. Correct. Another is she cooks delicious food. So look at over here. First one, I eat food. Can you make the question of this sentence? मैं खाना खाती हूँ, मैं क्या खाती हूँ। हम इसका आराम से बना सकते हैं। She cooks delicious food. वो क्या डिलीशियस फूड बनाती है, तो इसका व्हाट में क्वेश्चन नहीं बन रहा। ठीक है, अब ये देखिएगा, व्हाट डू आई ईट, इसका हमने बना लिया। अगर हमें इसका बनाना है, क्या वो मज़ेदार खाने बनाती है, तो इसका देखिएगा, डज शी ईट डिलीशियस फूड। अब यहाँ दोनों गौर से देखिएगा, इट स्टार्ट फ्रॉम व्हाट, ये हमारा व्हाट से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये जो दूसरा है ये व्हाट से स्टार्ट नहीं हो रहा, ये किससे स्टार्ट हो रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। तो हम अगर हमें सेंटेंस में से निकालना है ऑब्जेक्ट, हमें कंफर्म करना है कि इसमें ऑब्जेक्ट है या नहीं, तो हमें सिर्फ और सिर्फ व्हाट एंड हुम के क्वेश्चंस निकालने होंगे। तो जो सेकंड वाला है ये हमारा व्हाट और हुम से स्टार्ट नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है। तो हम पैसे क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट शी, फिर उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब कुक्स, फिर हम लिख देंगे डिलीशियस फूड। डिलीशियस फूड, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं आपको दूसरे एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। नाउ लुक इट ओवर हियर वेरी केयरफुली। आई टीच इंग्लिश, आई एम अ टीचर। अब फिर हमें क्या करना है, अगर हमें कंफर्म करना है कि इसमें से ऑब्जेक्ट कौन सा है और कॉम्प्लीमेंट कौन सा है, तो सिर्फ और सिर्फ हम व्हाट एंड हुम के क्वेश्चंस पर ही फोकस करेंगे। ठीक है, अब ये देखिएगा, दोनों क्वेश्चंस मिल रहे हैं। whom I teach, मैं किसे पढ़ाती हूँ, what I teach, मैं क्या पढ़ाती हूँ। अब मुझे I am a teacher इसका क्वेश्चन बनाना है, मैं क्या उस्ताद हूँ, ये तो कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा, लेकिन इसका एक क्वेश्चन ये बन सकता है, क्या मैं उस्ताद हूँ, am I teacher। अब ये देखिए, ये am I teacher भी what से स्टार्ट नहीं हो रहा है, it doesn't start from the verb, it start from the helping verb, it means that it is not object, it is belong to complement। तो अब हम इसको क्या कर देंगे, कॉम्प्लीमेंट में ऐड कर देंगे। पहले हम आई लिखेंगे, अब इसके अंदर हमें वर्ब कौन सा है, वर्ब कोई नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है एम, आई एम अ टीचर, करेक्ट। नाउ अनदर एग्जांपल, आई सिट ऑन चेयर, आई सिट ऑन चेयर, मैं कुर्सी पे बैठती हूँ। तो बेटा सिर्फ आपको इस चीज़ पे फोकस करना है, ये जो हमारे कॉम्प्लीमेंट होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, कॉम्प्लीमेंट एक्सटेंशंस, इंट्रांजिटिव, दे बोथ आर दी सेम थिंग। हमें अगर ये तीनों मालूम करने हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमें व्हाट एंड हुम के क्वेश्चंस पे फोकस करना है। अब इन तीनों सेंटेंसेस को अगर आप गौर से देखें तो इसमें व्हाट एंड हुम का कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा, तो इट मीन्स दैट कि ये हमारे कॉम्प्लीमेंट हैं, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। दीज आर नॉट ऑब्जेक्ट, दीज आर दी कॉम्प्लीमेंट। ओके जी बेटा, अब आप खोलिए पेज नंबर 203। 203। अब हमें इसमें क्या करना है, हमें इसके अंदर बताना है कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है और कौन सा एक्सटेंशन या कॉम्प्लीमेंट है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि कॉम्प्लीमेंट एंड एक्सटेंशन बोथ आर दी सेम थिंग, दोनों एक ही चीज़ें होती हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। अब ये लिखा है हैरी रन स्विफ्टली। अब ये जो हमारा हैरी है ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है और ये हमारा एक्सटेंशन या कॉम्प्लीमेंट है। देखिए क्या है, हैरी जो है स्विफ्टली से भागता है, तो ये जो क्या हैरी स्विफ्टली से भागता है तो ये डज से स्टार्ट होगा, डज
ये वर्ड से स्टार्ट नहीं हो रहा, इट डजंट स्टार्ट फ्रॉम दी वर्ड। तो ये जो अगर ये वर्ड का बन जाता सेंटेंस तो फिर ये कॉम्प्लीमेंट या एक्सटेंशन नहीं होता, फिर ये हमारा ऑब्जेक्ट होता। करेक्ट। ये हमारा रिवीजन था मिड टर्म का। आई होप यू डू नॉट हैव एनी लिटिल बिट कन्फ्यूजन। इफ यू हैव आई विल मेक यू अंडरस्टैंड अगेन, बट फॉर द टाइमिंग इट्स इनफ। नाउ कम टू द अनदर थिंग। मैंने आपको टेंसेस पढ़ाए थे प्रेजेंट परफेक्ट के मिड टर्म में, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट के। ठीक है, तो उसमें आप लोगों को क्या करना था, पैसिव के जो आपके रूल्स थे, रूल ऑफ पैसिव, पैसिव का फर्स्ट रूल ये है, चाहे आप फ्यूचर की बात करें, प्रेजेंट की बात करें या पास्ट की बात करें, उसमें सिर्फ और सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। थर्ड फॉर्म इज यूज इन पैसिव। करेक्ट। बाकी ये पैसिव सिर्फ और सिर्फ इन ट्रांजिटिव्स जो होते हैं, ट्रांजिटिव्स जो होते हैं उनके ही बनते हैं, इन ट्रांजिटिव्स के नहीं बनते। मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया है इन ट्रांजिटिव्स क्या होते हैं, जिसमें व्हाट एंड हुम के क्वेश्चंस नहीं बनते, जिन्हें ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती। ट्रांजिटिव्स वो होते हैं जिन्हें ऑब्जेक्ट की नीड्स होती है। तो पैसिव किसके बनते हैं, ट्रांजिटिव के। चार टेंसेस जिनके पैसिव कभी भी नहीं बनते, कौन कौन से वो चार टेंसेस मैंने आप लोगों को बताए थे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है, चार टेंसेस के पैसिव कभी भी नहीं बनते। अगर एग्जाम्स में आ भी जाए तो समझ जाइएगा कि वो आपको यानी कि कंफ्यूज करने के लिए दिया जा रहा है, जो कि बिल्कुल रॉन्ग होगा। अब आप यहाँ देखिए, नाउ लुक इट ओवर हियर, ही हैज़ रेड अ बुक। He has read a book, वो किताब पढ़ चुका है। देखिए पैसिव में जो होता है ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह ले लेता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह ले लेता है, दोनों एक्सचेंज हो जाते हैं और हर टेंस अपने बाद वाला टेंस लेता है। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का लेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट का वो लेगा, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का लेगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का तो बनता ही नहीं है। तो यहाँ देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, अब हमें इसका पैसिव बनाना है। तो हमें क्या करना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह चला जाएगा। देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट था और ये हमारा सब्जेक्ट, तो पहले ऑब्जेक्ट आ गया, फिर यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट था तो उसका वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाता है। अब जैसे कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वो किसमें, वो किसके टेंसेस लेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जब हम पैसिव बनाएंगे तो वो प्रेजेंट परफेक्ट के लेगा। और जब प्रेजेंट परफेक्ट के बनेंगे तो फिर वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के टेंसेस लेगा। अब ये देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट था, इसने किसके लिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के। ठीक है, अब हम एक फ्यूचर वाली एग्जाम्पल ले लेते हैं। चिल्ड्रन विल हैव फ्लोन अ काइट, बच्चे पतंग उड़ा चुके होंगे, और व्हाट वी विल डू इन इट, सेम थिंग वी विल डू, इसमें भी सब कुछ वही होगा। ये देखिए ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट, तो ये किसके हेल्पिंग वर्ब लेगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के। इसमें भी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह होगा और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह होगा। काइट विल हैव बीन फ्लोन बाय चिल्ड्रन, पतंग उड़ाई जा चुकी होगी बच्चों के जरिए। लुक इट ओवर हियर वेरी केयरफुली कि हमें क्या करना होगा। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, हर टेंस अपना नेक्स्ट टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब लेता है। आई विल हैव रिटन अ लेटर, लेटर विल हैव बीन रिटन बाय मी, करेक्ट। Children will have flown a kite, kite will have been flown by children. We will have kept fast in Ramzan, ठीक है, हम रमज़ानों में रोज़े रख चुके होंगे।
तो अब हमें क्या करना है कि पहले बताना है कि क्या काम पहले हुआ होगा, पहले काम कौन कर रहा होता है ये हम बाद में हाईलाइट करते हैं, पहले ये बताना होता है कि काम कौन कर रहा है। फास्ट विल हैव बीन कैप्ट बाय अस इन रमज़ान। ठीक है, ये जो रमज़ान है ये हमारा एडिशन है, यानी कि यहाँ पर अगर हम कहें कि इसमें हम ऑब्जेक्ट ढूंढें कि ऑब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट इसके अंदर वी है और ऑब्जेक्ट हमारा फास्ट है। यहाँ तक बात हमारी ख़त्म हो गई है। लेकिन अब ये इसके अंदर इस सेंटेंस में इन रमज़ान आए तो इट बिलोंग्स टू द एडिशन। अब आप इसको कॉम्प्लीमेंट नहीं, एक्सटेंशन नहीं सोचेंगे, ये हमारा एडिशन है, इसमें हमें ऑब्जेक्ट मिल चुका है, इसका पैसिव इजीली बन जाएगा। जिसमें हमें ऑब्जेक्ट नहीं होता सिर्फ उसके पैसिव नहीं बनते और वो हमारे इंट्रांजिटिव होते हैं। बट वी हैव गॉटन द पैसिव फ्रॉम दिस सेंटेंसेस दैट वी विल हैव केप्ट फास्ट, हम रोज़े रख चुके होंगे। सो फास्ट विल हैव बीन कैप्ट। अब ये देखिए यहाँ फास्ट ऑब्जेक्ट था तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट ने यहाँ पर आ गया, फास्ट विल हैव बीन कैप्ट बाय अस इन रमज़ान। करेक्ट। नाउ अनदर, यू हैड डन वर्क, तुम काम कर चुके थे, वर्क हैड बीन डन बाय यू। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों की बात समझ में आई? Again I will tell you everything whatever I taught you, that how we can recognize the coordinating। हम coordinating को कैसे recognize करेंगे? fan boys, those who belongs to the fan boys, for, and, nor, but, or, yet, so these are the fan boys, this is belong to the coordinating. Correct. Another, I made you understand sentences, what is sentences and what is not sentences, which sentence which gives you the full meaning, such as he sleeps, she smiles, it means they give the full complete sense. So these are belong to sentence, and those sentences who doesn't belong to the full complete sense, these are belong to not a sentence, such as she teaches, so what does she teach? I eat, what do I eat? So these are not belong to sentence, these are not sentence, ये हमारे sentence नहीं है। वो sentences जो हमें full meanings देते हैं, complete sense देते हैं, वो हमारे sentence होते हैं, और जो incomplete होते हैं उनमें हमें नहीं पता चल रहा होता कि क्या हो रहा है। ठीक है, और बाकी आपको ये इंटरजेक्शंस पढ़ाए हैं। ब्रावो हमारा होता है किसी के एडमायर करने के लिए, ब्रावो यू परफॉर्म्ड वेल। दूसरा होता है टू मेक देम कीप क्वाइट समवन, किसी को चुप करवाने के लिए। थर्ड वन हुर्रे, हुर्रे मीन्स प्लेजर भी होता है, इंग्लिश में हुर्रे के मीनिंग्स दूसरे प्लेजर भी आते हैं जो कि खुशी के होते हैं। हुर्रे शी इज़ गोइंग टू गेट मैरिड, हुर्रे स्कूल हैज़ बीन ओपन, जब हम खुश होते हैं तो हुर्रे कह के हम अपनी बात कंप्लीट करते हैं। हे होता है किसी को कॉल करने के लिए, टू कॉल समवन। हे व्हाट आर यू डूइंग, हे व्हाई आर यू स्माइलिंग, हे व्हाई आर यू टॉकिंग टू हर, मतलब किसी को कॉल करके आप जो कुछ भी कहना चाहें। वाव, वाव होता है कोई अच्छी चीज़ को, किसी अच्छी चीज़ को देख के जो हमारे मुंह से निकलता है, यानी कि नाइस के मीनिंग में आता है कि कितना प्यारा कमरा है, वाव व्हाट अ ब्यूटीफुल रूम, कितने खूबसूरत पहाड़ है, वाव व्हाट अ ब्यूटीफुल माउंटेन। तो ये वाव इसके लिए होता है। बाकी हमारा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है, आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को एनालाइज करना है। आपको एक सेंटेंस मिलेगा, शी गोज़ टू स्कूल, तो इसके अंदर शी हमारा सब्जेक्ट है, गोज़ टू स्कूल बिलोंग टू प्रेडिकेट। ठीक है, ही टीचेस मैथ, वो मैथ पढ़ाता है, ही हमारा सब्जेक्ट है, टीचेस मैथ हमारा प्रेडिकेट है। अब हमें करना है सब्जेक्ट, वर्ब एंड कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट इंट्रांजिटिव्स होते हैं जिसमें वर्ड एंड होम के क्वेश्चंस नहीं बनते। हमें एक सेंटेंस मिलेगा जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा, सो इट मीन्स दिस इज बिलोंग टू द कॉम्प्लीमेंट। इसमें वर्ड एंड होम का कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। आई मेड यू अंडरस्टैंड, आई गेव यू द एग्जाम्पल, आई होप यू गॉटन। नाउ आई मेड यू अंडरस्टैंड अगेन दैट आई सिट ऑन चेयर। So if I take out the question from this sentence, it means it start from the helping verb. Do I sit on chair? क्या मैं चेयर पे बैठती हूँ? तो ये किससे स्टार्ट हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब से, ये वर्ड से स्टार्ट नहीं हो रहा। मैं क्या कुर्सी पे बैठती हूँ, मैं किसे कुर्सी पे बैठती हूँ, ये कोई सेंटेंस नहीं बन रहा। ठीक है, मैं उस्ताद हूँ, आई एम अ टीचर, मैं क्या उस्ताद हूँ, ये कोई सेंटेंस नहीं बन रहा। लेकिन अगर फिर भी मुझे इसका क्वेश्चन बनाना है तो वो बनेगा क्या मैं उस्ताद हूँ, एम आई टीचर। सो इट स्टार्ट फ्रॉम द हेल्पिंग वर्ब, नॉट व्हाट। सिर्फ और सिर्फ व्हाट एंड होम के क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा कि अगर आपको सेंटेंस में से ऑब्जेक्ट निकालना है, सो जस्ट फोकस ऑन व्हाट एंड होम, देन यू मे टेक आउट ऑब्जेक्ट ईजीली।
जिनमें नहीं निकलेगा वो नहीं बनेंगे, ठीक है बेटा। और अभी मैंने आपको पैसिव का रिवीजन करवाया, मैंने आपको पैसिव में बताया कि बेटा इसके अंदर जो होते हैं ना थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है। वेदर यू मेट द पैसिव ऑफ पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, आप पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट के किसी भी टेंसेस का बनाएंगे वो आपकी थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगी। इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक दूसरे की जगह रिप्लेस कर लेते हैं। और बाकी इसका थर्ड रूल ये है कि हम इसमें इंट्रांजिटिव के पैसिव नहीं बना सकते। वो सेंटेंस जिसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होते उसके नहीं बनते, ठीक है बेटा। यहाँ तक आज का हमारा मिड टर्म का था इंशाल्लाह। I hope you have gotten everything. Now we will meet again another class. Till then, Allah Hafiz, take care.